Hello students, today I am going to take up second story of the chapter, two stories about flying. And the name of this story is The Black Aeroplane. It is written by Frederick Forsyth. It is a very interesting story with some mystery in it. It is a story about a pilot who reaches home safely in the mid of a storm. During his journey, some surprising events happened with him. ये कहानी एक पायलट की है और वो पायलट बहुत तूफ़ान में अपने घर जा रहा था और बहुत तूफ़ान का सामना करने के बाद एट लास्ट सेफली वो अपने घर पहुंच गया। लेकिन ड्यूरिंग हिज जर्नी उसके साथ कुछ सरप्राइजिंग इवेंट हुए जो बहुत ही मिस्टीरियस हैं। वी विल नो अबाउट ऑल दीज इवेंट्स इन दिस स्टोरी एंड एज फार एज द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ कंसर्न्ड, इट गिव्स द मैसेज दैट वन शुड नॉट लूज होप इवन एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम डेंजर। ये कहानी इस थीम पर बेस्ड है और ये हमें ये मैसेज देती है कि बहुत खतरे के समय भी, बहुत मुश्किल के समय भी हमें अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। सो टू नो मोर अबाउट द स्टोरी, लेट्स मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स द टेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी and stars were shining in the clear sky above me. The narrator was a pilot and he was flying his aircraft in the night. Narrator एक pilot है और वो रात में अपना प्लेन उड़ा रहा है. So he says the moon was rising up in the east behind me. वो कहता है कि मेरे पीछे ईस्ट डायरेक्शन में मून राइज हो रहा था. That means he was going towards the west direction. इसका मतलब है कि वो वेस्ट की ओर जा रहा था. And he says stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. Okay, so he tells us that the sky was totally clear. There wasn't a single cloud and stars were clearly visible. आसमान बिल्कुल साफ था, वहाँ पर एक भी बादल नहीं था और उस साफ आसमान में तारे चमकते हुए नजर आ रहे थे. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. He was very happy to be alone up in the sky above the sleeping countryside. It is night time and countryside means village side. All the people were sleeping and he was flying up in the sky in his aircraft. Okay, countryside का मतलब क्या है? village side. और रात का वक्त था तो सारे लोग सो रहे थे, तो इसलिए वो कह रहा है कि sleeping countryside यानी कि जब सब लोग सो रहे थे उस वक्त मैं आसमान में ऊपर अपना प्लेन उड़ा रहा था और इस बात से मैं बहुत खुश था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. Now what is Dakota? Dakota is a type of aeroplane. Dakota उसके प्लेन का नेम है and he was going from France to England. वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था अपने डकोटा एरोप्लेन में. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. He was so enthusiastic about going back to England and because he was going to meet his family and he was going to have a holiday and enjoy with them, so he was very happy. Okay, वो इंग्लैंड जा रहा था और वहाँ जाकर वो अपनी फैमिली से मिलने वाला था, तो वो अपने हॉलीडे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसी बारे में सोच रहा था. एट दैट मोमेंट ही लुक्ड एट हिज वॉच. तभी उसने टाइम जानने के लिए अपनी वॉच में देखा एंड इट वॉज 1:30 in the morning. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. So we know that he was flying from France to England. So he thought that he should inform the Paris control room. वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था और उसे लगा कि उसे पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देना चाहिए. So when he looked down from his plane, he could see the lights of that big city. जब अब उसने अपने प्लेन से नीचे देखा तो उसे उस बड़े शहर की लाइट्स दिखाई दे रही थी. दैट मीन्स उसे पेरिस की लाइट दिखाई दे रही थी. नाउ ही वॉज फ्लाइंग अबव द पेरिस. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट. सो टू गिव द मैसेज ही स्विच्ड ऑन द रेडियो. उसने अपना रेडियो ऑन किया और मैसेज देना स्टार्ट किया. पेरिस कंट्रोल, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. So at first he told his एरोप्लेन्स नेम एंड कोड. उसने अपना एरोप्लेन का नेम बताया Dakota DS और उसका कोड भी बताया 088.
सो दिस इज़ द वे इन विच यू कम्युनिकेट थ्रू द रेडियो. हम रेडियो में इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. सो ही सेज दैट इट्स डेकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, दैट मीन्स आई एम गोइंग टूवर्ड्स इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ. एंड देन ही सेड ओवर. तो जब हम रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और हमारा मैसेज एंड हो जाता है, तो ये सिग्निफाई करने के लिए कि हमारी बात ख़त्म हो गई है और आप बोल सकते हैं, हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ओवर. तो वही उसने भी किया. अपना मैसेज देने के बाद उसने ओवर बोला. दैट मीन्स नाउ द पेरिस कंट्रोल रूम कैन रिप्लाई हिम. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. So as soon as he delivered his message, he got a reply from that Paris control room. उसे पेरिस कंट्रोल रूम से रिप्लाई मिला. एंड what does the person say? DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088 over. ओके, तो पेरिस कंट्रोल रूम से जो मैसेज आया उसने बोला आई कैन हेयर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ. एंड यू ought to turn 12 degree west now. So the Paris control room informed him that he should take a turn for 12 degree west. पेरिस कंट्रोल रूम से उसको मैसेज मिला कि उसको अपने प्लेन को वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री की तरफ टर्न करना चाहिए. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. Okay, so after receiving the message from the control room, at first he checked the map. जब उसे कंट्रोल रूम से मैसेज मिला, उसने सबसे पहले अपना मैप चेक किया एंड द कंपास. कंपास इज़ अ डिवाइस दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन. कंपास एक डिवाइस होती है जो हमें डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है. सो टू नो द डायरेक्शन ही चेक द कंपास ऑल्सो. एंड देन ही स्विच्ड ओवर टू हिज सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और उसके बाद उसने अपना लास्ट फ्यूल टैंक को यूज़ करना शुरू किया. एंड इट हैड वेरी लिटिल फ्यूल इन इट. और उसका ये लास्ट फ्यूल टैंक था और इसमें भी बहुत कम फ्यूल था. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर चेकिंग द मैप एंड द कंपास एंड आफ्टर स्विचिंग द aeroplane to the last fuel tank, he turned his Dakota aeroplane towards west direction at 12 degree. उसने अपने डेकोटा एरोप्लेन को वेस्ट की तरफ 12 डिग्री में टर्न कर लिया. I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. So he was very happy that he would be in time and have a breakfast with his family. वो बहुत खुश था और उसको लगा कि शायद मैं सुबह ब्रेकफास्ट के समय तक अपने घर पर पहुंच जाऊंगा. एंड आई विल हैव अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. और वो सोच रहा था कि घर जा कर के मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा. Everything was going well. It was an easy flight. Okay, so it was a very easy flight. He didn't face any hurdle till yet. ये जो फ्लाइट थी ये बहुत आसान थी, अभी तक कोई परेशानी उसके सामने नहीं आई थी. And everything was going well. और सब कुछ अच्छा था. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. Okay, so he had already moved some 150 kilometers from the Paris towards London, but when he suddenly turned back, he saw some clouds in the sky. And what kind of clouds they were? They were stormy clouds. Okay, वो लगभग 150 किलोमीटर्स की दूरी तय कर चुका था पेरिस से. और लेकिन जब उसने अचानक ही पीछे देखा तो उसको अपने पीछे बड़े बड़े बादल नजर आए. और वो बादल कैसे थे? वो बादल तूफान वाले बादल थे. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. They were huge. The clouds were enormous. वो बहुत बड़े बादल थे. And they were looking like black mountains. और वो काले पहाड़ के जैसे लग रहे थे. They were in front of his plane as well. वो उसके प्लेन के सामने भी थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो बादल ना हो बल्कि वो बड़े बड़े काले पहाड़ हों. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. So now he was in a dilemma. What happened? When he saw at the clouds, he felt that he couldn't fly over them and he had very little fuel. He couldn't go around them to the north or south. जब उसने उस बादलों को देखा तो वो बादल बहुत ज़्यादा बड़े थे और वो जानता था कि वो उन बादलों के ऊपर से नहीं जा सकता है, वो इतने बड़े हैं. लेकिन उसके पास फ्यूल भी बहुत कम था, तो वो उस बादलों के चारों ओर नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में कहीं भी नहीं जा सकता था. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम एंड आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट.
Then he thought that he should go back to Paris. तो उसने सोचा कि मैं इस बादलों को क्रॉस तो नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फ्यूल बहुत कम है, तो शायद मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए बिकॉज अभी मैंने 150 किलोमीटर्स ही वहाँ से क्रॉस किया है. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम and I wanted that breakfast. But he was very eager to reach home and to have the breakfast with his family. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. So Danny decided that he will take the risk. वो इंग्लैंड जाकर के अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था. उसे वो ब्रेकफास्ट करना था अपनी फैमिली के साथ, तो उसने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेगा. ओके, वट वॉज द रिस्क ही वॉज गोइंग टू टेक, और वो रिस्क क्या था? फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म से होकर गुजरना, तूफान से होकर गुजरना. दैन ही फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. तो फिर उसने ये डिसाइड किया कि मैं इस तूफान का सामना करूंगा, और वो अपने प्लेन को उस तूफान से लेकर जाने के लिए तैयार हो गया. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. So as he entered the cloud, there was black all around, there was dark all around, and it was impossible to see anything. Nothing was clearly visible. जैसे ही उसने क्लाउड्स में एंटर किया, पूरा अंधेरा छा गया, हर तरफ बस काला ही नज़र आ रहा था. बिकॉज वी हैव रेड दैट द क्लाउड्स वर लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले कलर के बादल थे, तो उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा था और कुछ भी चीज़ प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही थी. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, and because of the heavy storm his plane got unstable. और उस तूफ़ानी बादलों की वजह से उसका जो एरोप्लेन था वो एक स्टेबल पोजीशन में नहीं रह पा रहा था. इट वॉज टर्निंग एंड ट्विस्टिंग एंड जंपिंग. वो उलट पुलट रहा था, ट्विस्ट हो रहा था, मुड़ रहा था और यहाँ वहाँ गिर रहा था. आई लुक्ड एट द कंपस. आई couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round, and it was dead. It would not work. So when he was stuck in the storm, he tried to check the compass to know that where he was. उसने compass को check किया ये देखने के लिए कि वो कहाँ पर है. But what happened? He couldn't believe his eyes. When he looked at the compass, he got shocked. जब उसने कंपास पे देखा तो वो शॉक हो गया बिकॉज द कंपास वॉज नॉट वर्किंग. वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था. इट वॉज जस्ट टर्निंग राउंड एंड राउंड. वो बस गोल गोल घूम रहा था. ओके, वो तूफान इतना इनॉर्मस था कि कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया. सो अब कंपास वर्क नहीं कर रहा था. दैट मीन्स उसको अपनी डायरेक्शन पता नहीं लग पा रही थी. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. देन ही ट्राइड टू सेट अ कॉन्टैक्ट थ्रू रेडियो. फिर उसने रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट इट वाज डेड टू. लेकिन वो भी डेड हो गया था और कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसकी प्लेन का काम नहीं कर रहा था. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. ओके, उसने रेडियो पे बोलने की कोशिश की दैट पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. ही ट्राई टू सेट अ कॉन्टैक्ट विद पेरिस कंट्रोल रूम. देयर वॉज नो आंसर. लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला. द रेडियो वॉज डेड टू. रेडियो भी खराब हो गया था. इट वॉज नॉट वर्किंग. आई हैड नो रेडियो, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. So now the compass was not working, the radio was not working, and he did not know that where he was. उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है और वो तूफान में खो गया था, गुम गया था. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है. उसे कोई भी वे आउट नजर नहीं आ रहा था. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. But suddenly what happened? All of a sudden a black aeroplane came near him. ओके, जब वो पूरी तरह से उस तूफान में फंस गया था, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना है, तो सडनली क्या हुआ, एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन उसके सामने आया. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. ओके, इन दैट अनदर एरोप्लेन देयर वॉज नो लाइट ऑन इट्स विंग्स. उस दूसरे एरोप्लेन के विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी. बट ही वॉज जस्ट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन दैट स्टॉर्म. लेकिन वो जो दूसरा एरोप्लेन था वो उसके ठीक सामने उड़ रहा था. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव. ओके, सो एवरीथिंग वॉज ब्लैक ऑल अराउंड बट ही कुड सी द पायलट्स फेस. ओके, सब कुछ वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था. लेकिन जब वो एरोप्लेन उसके पास में आया तो उसको उस एरोप्लेन में जो पायलट था उसका चेहरा नज़र आ रहा था. एंड टू फाइंड आउट दैट देयर इज़ एन अनदर पर्सन ऑल्सो, he got very happy.
ओके पर ये देख करके कि चलो तूफान में वो अकेला नहीं है, उसके साथ में कोई और भी है, उसको थोड़ी सी खुशी मिली. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. देन द पायलट ऑफ अदर एरोप्लेन लिफ्टेड हिज हैंड एंड वेव्ड. तब दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने अपना हाथ उठाया और वेव किया, हाथ हिलाया. फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. ओके सो अनदर एरोप्लेन वॉज वेविंग हिज हैंड. वो अपने हाथ को हिला रहा था और क्या कह रहा था वह हाथ हिला करके? फॉलो मी. ओके वो इस लॉस्ट पायलट को, जो हमारा नरेटर है जो तूफान में फंस गया था, वो इसे इशारा कर रहा था कि मुझे फॉलो करो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. So the pilot of the other aeroplane has understood that he has lost his direction, and so he's asking him to follow him, and he was trying to help him. वो दूसरे एरोप्लेन का पायलट ये समझ गया था कि हमारा नरेटर जो है वो खो गया है और वो उसे हेल्प करने की कोशिश कर रहा था. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it could be easier for me to follow him. Okay, now the other aeroplane's pilot turned towards the north so that this aeroplane could turn easily and follow him. अब उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ डायरेक्शन में हल्के से टर्न कर लिया ताकि ये जो डकोटा एरोप्लेन का पायलट है ये उसको आसानी से फॉलो कर सके. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. Now the narrator, who caught inside the storm and he was unable to establish contact with anybody. At that time, this another aeroplane helped him to get out of the storm, so he was very happy. And he was just obeying the commands of that another aeroplane like an obedient child, and he was happy to do it. Okay, so उस दूसरे एरोप्लेन ने इस डेकोटा के पायलट को तूफान से बाहर निकालने में उस वक्त हेल्प की जब उसे कोई भी और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था. तो जैसे जैसे कमांड्स वो दूसरा पायलट देते जा रहा था ये उसे एक ओबीडियंट बच्चे की तरह फॉलो कर रहा था. जैसे अच्छे बच्चे, ओबीडियंट बच्चे अपने बड़ों की बातों को मानते हैं, वैसे ही उसी तरीके से ओल्ड डेकोटा का जो पायलट था वो दूसरे एरोप्लेन के पायलट की सारी कमांड्स को फॉलो कर रहा था. एंड ही सेज दैट आई वॉज हैप्पी टू डू इट. और वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा करने में अच्छा लगा, उसके सारे कमांड्स को फॉलो करने में मुझे अच्छा लगा. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. So, for nearly half an hour, they both aeroplanes were flying in those stormy clouds. वो दोनों लगभग आधे घंटे तक उन clouds में उड़ रहे थे. Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. So now, the pilot of old Dakota noticed that his aeroplane has fuel only to fly for just 5 or 10 minutes more. अब ओल्ड डेकोटा का जो पायलट था उसने नोटिस किया कि उसके फ्यूल टैंक में सिर्फ 5 और 10 मिनट ज़्यादा उड़ने के लिए ही फ्यूल बचा है और इसके बाद वो उड़ नहीं पाएगा बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी यूजिंग हिज सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. सो ही हैड टू लैंड एज क्विकली एज पॉसिबल. ओके, वी हैव रेड, हमने पहले पढ़ा था कि उसने अपना सेकेंड टैंक और लास्ट टैंक यूज़ करना शुरू कर दिया था और उसमें भी बहुत कम फ्यूल था, तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उसे उतनी जल्दी लैंड करना था. I was starting to feel frightened again. So what happened? Because of the fuel, this pilot's tension increased, because if the fuel goes off or if it will be over, then he will not be able to fly, or again he would be in danger of crash landing or something. अब इस पायलट को टेंशन होने लगी, ओल्ड डेकोटा के पायलट को, क्योंकि अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो उसे किसी और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है या फिर उसका प्लेन जो है वो क्रैश हो सकता है. सो उसे डर लगने लगा. बट दैन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. बट दैन ही गॉट सरप्राइज टू सी दैट द अदर प्लेन हु वाज गाइडिंग हिम, ही स्टार्टेड गोइंग डाउन. दैट मीन्स इट वाज टाइम टू टेक लैंडिंग. ओके, फिर तभी उसने नोटिस किया कि जो दूसरा एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जा रहा है और दैट मीन्स नीचे की तरफ जा रहा है मीन्स वो लैंड कर रहा है. एंड ही फॉलोड हिम, और इस ओल्ड डेकोटा के पायलट ने उसे फॉलो किया. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe.
So as he was following the other plane down, suddenly he saw two parallel lines with lights on them. जैसे ही वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता हुआ नीचे आया, उसे अपने सामने दो पैरेलल लाइंस दिखाई दी जिसमें लाइट्स लगी हुई थी. दैट इंडिकेट्स अ रनवे वेयर ही कुड लैंड हिज प्लेन. ओके, तो उसे समझ में आ गया कि ये एक रनवे है. एंड व्हेन ही सॉ रनवे ही वाज श्योर दैट इट वाज एन एयरपोर्ट एंड ही वाज सो हैप्पी दैट ही हैड रीच्ड एयरपोर्ट सेफली. ओके, और उस रनवे को देखकर वो खुश हो गया, उसे लगा कि हाँ मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, और वो सेफली एयरपोर्ट पहुंच गया था. इस बात से वो बहुत खुश था. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. So to thank to the black aeroplane, he looked around so that he could thank him to save him by guiding him in the storm, but he could not see anything. ओके, तो जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला था, उसने अपने चारों तरफ देखा ताकि वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू बोल सके, बिकॉज उसी पायलट की वजह से वो सेफली लैंड कर पाया था और उस तूफान में उसने उसको गाइड किया था. बट एज ही लुक्ड अराउंड देयर वॉजेंट एनी एरोप्लेन. लेकिन उसने अपने चारों तरफ देखा पर उसे कोई भी एरोप्लेन नहीं दिखाई दिया. देयर वॉज नो एरोप्लेन एंड द ब्लैक एरोप्लेन हैज़ गॉन. वहाँ कोई एरोप्लेन नहीं था और वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था. I could not see it anywhere. He was unable to see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. So he is saying that he landed at the airport safely, and now he was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. वो कह रहा है कि मैंने सेफली लैंड कर लिया और अब मैं कंट्रोल टावर की तरफ जा रहा था और मुझे इस वक्त अपने इस ओल्ड डेकोटा को छोड़कर जाने में बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था. आई वॉज नॉट सॉरी एट ऑल. सो वाई ही वॉज सेइंग सो, उसे क्यों दुख नहीं हो रहा था? बिकॉज दैट डे ही हैड अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग इन दैट प्लेन, बट समहाउ ही मैनेज टू सेव हिज लाइफ, सो ही वॉज हैप्पी. ओके, उस दिन जब उसने ओल्ड डेकोटा प्लेन को उड़ाया तो उसका एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल था और बहुत मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई, तो इसलिए उसे अब उसे छोड़कर जाने में बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था. एंड देन ही मूव टूवर्ड्स द कंट्रोल टावर. और फिर वो कंट्रोल टावर की तरफ चला गया. आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु वाज द अदर पायलट. आई वांटेड टू से थैंक यू. Okay, so when he entered in the control tower, he saw a woman sitting there. So he asked some questions to her that where he was and where the other pilot was. जब वो कंट्रोल रूम पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक वुमेन बैठी हुई है और उसने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए. उसने पूछा कि मैं कहाँ पर था, बिकॉज हिज कंपास वाज नॉट वर्किंग. उसका कंपास बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, तो उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर था. और उसने ये भी पूछा कि वो जो दूसरा पायलट था वो अब कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. मुझे उस पायलट से मिलकर उसे थैंक यू बोलना है. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. Okay, so when he asked some question to the woman, that woman gave a very strange reply and very strangely he looked at the pilot and laughed. जब पायलट ने उससे क्वेश्चन किया कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कहाँ है, तो उस वुमेन ने, उस महिला ने उसे बहुत अजीब तरीके से देखा और फिर वो हंसने लग गई. एंड वाई शी वॉज लाफिंग? अनदर एरोप्लेन up there in the storm. No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Okay, she was laughing because she hadn't seen any other aeroplane in the sky except the narrator's plane. वो क्यों हंस रही थी? बिकॉज उस दिन उसे आसमान में कोई भी और दूसरा प्लेन उड़ता हुआ नजर नहीं आया. एंड सी सेड अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन अब दे इन द स्टॉर्म, तूफान में. नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट. उसने बोला वहाँ कोई भी और दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था. ओके, एंड व्हेन आई चेक द रडार ओनली योर एरोप्लेन वाज देयर. जब मैंने रडार पे देखा तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था. व्हाट इज रडार? रडार इज अ सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्लेन्स एंड शिप्स एटसेट्रा. रडार एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम एरोप्लेन्स को, प्लेन्स को या फिर शिप्स को ट्रैक करते हैं. Okay, so when she checked in the radar, there was only one aeroplane and that was the old Dakota. तो जब उसने उस रडार पर देखा था तो उसको सिर्फ एक ही एरोप्लेन वहाँ नजर आया और वो एरोप्लेन कौन सा था? ओल्ड डेकोटा था. उस नरेटर का ही प्लेन वहाँ पर उड़ रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights?
So now when the woman replied the narrator that there was no other aeroplane, he got totally confused. जब उस महिला ने उसे बताया कि कोई भी प्लेन आसमान में नहीं उड़ रहा था, वो बहुत कंफ्यूज हो गया. एंड देयर आर सम क्वेश्चंस इन हिज माइंड, और उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे दैट हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली. अगर वहाँ पर कोई एरोप्लेन नहीं था तो मुझे यहाँ पर सेफली पहुँचने में हेल्प किसने की. आई वॉज नॉट हैविंग एनी कंपास और रेडियो. मेरा कंपास वर्क नहीं कर रहा था, मेरा रेडियो वर्क नहीं कर रहा था, और मेरे प्लेन में फ्यूल भी बहुत कम था. सो हु वॉज दैट पर्सन हु हेल्प मी इन दैट सिचुएशन. तो वो कौन था जिसने मुझे उस सिचुएशन में हेल्प की. उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया. एंड दैट एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग विदाउट हैविंग एनी लाइट्स. उस एरोप्लेन के विंग्स में कोई भी लाइट नहीं थी. बट इफ़ देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट मी, वट वॉज दैट एंड हाउ आई हैव रीच्ड हियर. Okay, so these are some questions which were lingering in the mind of that pilot, but they are unanswered. ये कुछ questions हैं जो उस पायलट के दिमाग में चल रहे हैं. And this is the mystery, this is the suspense of the story. इस story का suspense यही है कि पायलट को लगा कि कोई एरोप्लेन उसकी हेल्प कर रहा है, कोई ब्लैक एरोप्लेन है जो उस तूफान में उसे गाइड कर रहा है. लेकिन जब उसने कंट्रोल टावर पे पूछा तो वहाँ पर ऐसा कोई भी एरोप्लेन नहीं था, और पायलट को अपने इस क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाए एंड ही वाज टोटली कंफ्यूज्ड. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दैट. तो अब सवाल ये उठता है कि वो चीज़ क्या थी. अगर वहाँ कोई एरोप्लेन नहीं था तो किसने पायलट की हेल्प की. एक्चुअली दिस इज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ पायलट हिमसेल्फ हु डिड नॉट लूज होप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो हम कह सकते हैं कि ये शायद पायलट का खुद का कॉन्फिडेंस था. उसने अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं खोई. एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू रीच इंग्लैंड एंड टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. सो दिस इज़ द थिंग दैट लैड टू रीच द एयरपोर्ट सेफली. और उस पायलट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था. वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर चाहत थी कि वो अपने घर पहुँचे और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करे. और उस तूफ़ान को देखने के बावजूद भी उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे घर जाना है. तो उसके उस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ने ही उसके इस तूफ़ान से बाहर निकलने में हेल्प की. दो ही वॉज फैंटिसाइजिंग दैट देयर इज़ अनदर एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, बट देयर वॉज ओनली हिज होप एंड स्ट्रॉन्ग विल विच हेल्प हिम टू रीच सेफली. ऑल्दो वो सोच रहा था कि शायद ब्लैक एरोप्लेन है जो मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई एरोप्लेन नहीं था. ये सिर्फ उसकी उम्मीद थी और उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था जिसने उसकी हेल्प की. एंड दिस इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर की थीम भी यही है, नेवर लूज होप इन एनी सिचुएशन, कीप योर होप्स कम्प्लीटली सो यू विल बी एबल टू ओवरकम एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ. वट इज़ द मैसेज एंड द थीम? दैट वी शुड नॉट लूज़ होप. हमें कहीं भी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए और हमेशा हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए. और अगर हमें खुद पर विश्वास होगा तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी. I hope you would like this story and the video as well. Stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.